I am Dr. Nomia Ashraf, and I welcome you all on behalf of Faculty of Gynae and Obstetrics. This slide shows a brief introduction of mine. Currently, I am working as Associate Professor in Fatma Jinnah Medical University, and my field of interest in the general pool of gynae and obstetrics is reproductive endocrinology and infertility. And I'm the first supervisor for the training of subspecialty all over Pakistan. We take immense pride as a unit that Fatma Jinnah Medical University, this is the first university including both general and public sector and private sector hospitals where the 4 subspecialties of gynae and obstetrics has been accredited by CPSP as well as for the university programs. So coming back to the topic of today, that is the latest trends in infertility, especially from a general practitioner's point of view. So what is subfertility? We will discuss in this presentation how you should initially take history, examine the patient, when to refer the patient, who to refer the patient to a specialist clinic, and what can a general practitioner do on their behalf to improve the fertility treatment outcomes. So what is subfertility? It is failure to achieve a pregnancy after 12 months of regular and unprotected intercourse. It affects around 1 in 7 couples all over the world. The causes of subfertility, as we all know, just for revision purpose, that it includes male factor infertility, female factor infertility, combined male and female factor infertility, and unexplained infertility. Unexplained infertility, it accounts for about 10% of the total number of infertility cases. Male factor infertility, it may be due to low sperm count, abnormal morphology of the sperms, or poor motility of the sperms. Female factors may include ovulation disorders, tubal factor infertility, endometriosis, uterine factor infertility, or any cervical factors. The combined factors may include both when there is some element of male as well as female infertility. So what are the latest trends in the infertility and its management? हम सबको पता है कि infertility all over the world is on the rise because of different lifestyle factors, stress, obesity, work from home. All these factors had led to an increase in the infertility cases and prevalence of infertility all over the world. So definitely there is increased requirement for fertility experts and for fertility services. Assisted reproductive techniques has seen a boom in the last 10 to 20 years. There are many advancements in the field of ART, and there is also growing demand for fertility preservation as well. What are different ART? The first 2, they are in vitro fertilization and ICSI. The rest of 2, I have written them, लेकिन अब ये जो है in latest जो ART centers हैं, they are not being practiced. So what is IVF and ICSI outcomes entail? The success rate of any IVF or ART depends upon the quality of the egg, quality of the sperm, and age of both the partners as well as the quality of the embryo. But there is risk of multiple pregnancies and ovarian hyperstimulation. We must keep in mind that there is always a risk of multiple pregnancy and ovarian hyperstimulation with assisted reproductive techniques. So, अब यहाँ पे आप सबका रोल है कि आप लोग क्या अपना रोल प्ले कर सकते हैं before referring a patient to a subspecialty clinic. So, the general practitioner, you should always ensure that the couple who is having any fertility problem, they should receive correct advice, they should receive the correct investigations and proper referral and timely referral. So, आप सबका जो ज़िम्मा है उसमें ये है कि क्योंकि सबसे पहले पेशेंट जो है वो जनरल प्रैक्टिशनर के पास आता है. जब वो पेशेंट आपके पास आए, उसकी इनिशियल असेसमेंट इंक्लूडिंग हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड किसको जल्दी रेफ़र कर देना है, किसको इनिशियली आप लोग अपने पास इवैल्यूएट कर सकते हैं, किसको वेट कराना है और किसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऑफ़र करनी है, ये आपका रोल है. उसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल इज कि यू शुड कैटेगराइज द पेशेंट आफ्टर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन कि वो पेशेंट किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, वो किसी एक्सप्लेन हो रही या कोई कॉज या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है. So the first step you have to do as general practitioner is
to categorize the patient on basis of history, examination and investigations. The later the patient will be put into either they have some identifiable cause or it is unexplained infertility. हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने पूछने हैं, और ये सारी जो है ये कनेडियन गाइडलाइंस और अमेरिकन गाइडलाइंस फॉर जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं जो कि 2016 और 20 से बीच में रिवाइज हुई हैं। हिस्ट्री में ऑब्वियसली ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी, दोनों पार्टनर्स की क्या एज है, पहले कोई फर्टिलिटी है, पहले कोई पैरिटी है, पहले कोई प्रेगनेंसी अचीव हुई है, किसी ट्रीटमेंट से अचीव हुई है या स्पॉन्टेनियस हुई है, कोई रेलिवेंट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री है, कोई फैमिली हिस्ट्री है प्री मेच्योर मीनोपॉज की या जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, उसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे फैमिली प्रैक्टिशनर्स जो है वो इसमें कर सकते हैं वो लाइफस्टाइल जो है उसकी इवैल्यूएशन, उसके दोनों पार्टनर्स की लाइफस्टाइल के अंदर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इनफर्टिलिटी और लो फर्टिलिटी पोटेंशियल। इसके अलावा जो कनेडियन कंसेंसस है वो ये है कि आपने यू हैव टू मेक श्योर कि पेशेंट इज़ रूबेला इम्यूनाइज्ड, फॉलिक एसिड ले रही है, उसके अलावा कोई और ऐसी ड्रग तो नहीं ले रही जो कि उसको हैम्पर कर रही है फर्टिलिटी में, और सर्वाइकल कैंसर और सर्वाइकल स्क्रीनिंग हुई है जो डॉक्टर आमना ने बताया कि स्क्रीनिंग एवरी 6 मंथ्स जो है वो एटलीस्ट पाकिस्तान में तो ये है कि वंस इन अ लाइफ टाइम इट हैज़ टू बी डन। एग्जामिनेशन, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है टू रूल आउट एनी हाई BMI है पेशेंट का, कुशिंग्स डिजीज़ है, थायराइड डिजीज़ है, जो कि आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पे डिटेक्ट कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन यूजुअली जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट करता है। उसके अलावा पेशेंट का BP रिकॉर्ड करना इज़ अ गुड प्रैक्टिस पॉइंट, और BMI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। A high BMI में ऑल्सो resist access to some complex treatment, जैसे कि IVF है और BMI ज़्यादा है तो पेशेंट को पहले ये एडवाइस की जाती है कि पहले जो है वो वेट रिड्यूस करें और हेल्दी BMI अचीव करें, और उसके बाद जो है वो ही शुड सीक ART ट्रीटमेंट। इन्वेस्टिगेशंस आपने क्या क्या ऑफर करनी है एट GP लेवल, सीमन एनालिसिस ज़रूर एडवाइस करना है, 2 सैम्पल्स होने चाहिए 2 to 7 वीक्स की एब्सटिनेंस के साथ और 3 मंथ्स अपार्ट। उसके अलावा ओविलेशन, अगर पेशेंट के नॉर्मल साइकिल हैं तो इट मींस के 80 to 90% ऑफ द पेशेंट्स में ओविलेशन हो रही है, लेकिन फिर भी आपने FSH और LH ज़रूर ऑर्डर करना है। उसकी वजह यह है कि ये आपका बेस लाइन लेवल आएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस। AMH जो है वो आप करवा सकते हैं, इट शोज़ ओवेरियन रिजर्व क्या है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो AMH का रोल है वो प्रिडिक्टिव है। ART साइकिल्स में अगर एक पेशेंट IVF करवा रही है तो उसमें AMH अगर लो है तो इट मीन्स बैड न्यूज़, लेकिन अगर एक पेशेंट है जो कि AMH उसका लोअर नॉर्मल पे है लेकिन स्पॉन्टेनियस साइकिल है और कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, उसकी स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन के चांसेस हैं, तो देन AMH लो भी हो तो उससे उसकी स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोजेस्टेरॉन करा सकते हैं टू कंफर्म ओव्यूलेशन। सेकंड चीज़ ये है कि आपने ट्यूबल स्टेटस देखना है। ट्यूबल स्टेटस जो है वो आप हिस्टेरोसेल्पिंजियोग्राफी के साथ करा सकते हैं। अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस है, PID है, इन्फेक्शन है, प्रीवियस हिस्ट्री सजेस्टिव है, तो फिर आप उसकी लेप्रोस्कोपी और डाई टेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक टेस्ट जो हमने मेंशन नहीं किया वो हाइकोसी है कि हिस्टेरोसेल्पिंजियो कंट्रास्ट सोनोग्राफी। अगर अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप जो है वो सेलाइन इन्फ्यूजन के साथ अल्ट्रासाउंड करके यूट्राइन एनॉमलीज एज वेल एज ट्यूबल स्टेटस को भी असेस कर सकते हैं। ये नाइस की गाइडलाइंस हैं जो कि रिवाइज हुई हैं 2022 में। 2022 में सीमन एनालिसिस के पैरामीटर्स भी WHO ने नए मैनुअल पे रिवाइज किए हैं। यू कैन सी कि ये जो है इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है। वॉल्यूम उन्होंने 1.4 नॉर्मल कहा है, स्पर्म काउंट जो है वो 39 पहले भी थी, अभी भी वही है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सीमन एनालिसिस में जो WHO का मैनुअल है इट गिव्स अ स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया दैट हु शुड बी परफॉर्मिंग अ सीमन एनालिसिस। आइडियली अगर आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों तो सीमन एनालिसिस शुड बी डन ईदर बाय एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और एन एंड्रोलॉजिस्ट। उसकी वजह यह है कि जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट सीमन असेस करते हैं सीमन की क्वालिटी को और जिस क्राइटेरिया को ख़ास तौर पे मॉर्फोलॉजी को लेके जो कि क्रूगर्स क्राइटेरिया है, WHO का क्राइटेरिया 6 क्राइटेरिया है, तो उसको जो है वो बहुत अच्छा असेस कर सकते हैं। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, CNN पे आई है कि जी टाइनी नैनो पार्टिकल जो है वो ह्यूमन टेस्टिकल्स में से रिट्रीव हुए हैं। पहले ये खबर थी कि प्लेसेंटा में से भी रिट्रीव हुए हैं, तो इट मीन्स कि जो हमारी लाइफस्टाइल है इट इज़ डेफिनेटली इफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ गैमीट्स बोथ मेल एज वेल एज फीमेल। जो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आप लोगों के लिए है क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि एडोलेसेंस एज में, यंगर एज ग्रुप में, फर्टाइल ग्रुप में सारी जगह जो है वो आप उनको ऑफर करें तो जो आउटकम्स हैं फॉर फर्टिलिटी दे विल बी इम्प्रूव्ड।
स्मोकिंग, कैफीन, कोई भी जो है रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं, उसके अलावा एक हेल्दी BMI लेना, हेल्दी डाइट लेना, और हॉट स्वाना बाथ्स हैं, बहुत हॉट टेम्परेचर में काम करना है, टाइट अंडरगारमेंट्स हैं, और स्पेशली आजकल जबकि जो है जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो जिम जाते हैं, प्रोटीन शेक्स लेते हैं, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स लेते हैं, दे ऑल इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ स्पर्म एंड देयर फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल। किसको रेफ़र कर देना आपने? वुमेन अंडर 35 आफ्टर 1 ईयर को ज़रूर रेफ़र करना है। 35 से 39 ईयर्स अगर पेशेंट ने 6 मंथ्स का ट्राई किया है और कंसीव नहीं कर सकी तो उसको रेफ़र कर देना है। 40 प्लस पे जो वुमेन है उसको इमीडिएटली रेफ़र कर देना है। ट्यूबल सर्जरी हुई है उसको रेफ़र कर देना है, और सवेयर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी को रेफ़र कर देना है। उसके अलावा पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है, पेशेंट की फैमिली में जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि स्केलेटल मसल हैं, आपको लगता है कि ये कैरी कर सकती है, थैलेसीमिया है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, इन सारे पेशेंट्स को आपने अर्ली रेफरल कर देना है। आप लोग क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं कॉमनली? पॉलीसिस्टिक ओवरीज बहुत कॉमन है, उसको आपने डायग्नोज करना है, उसको आपने रेफ़र करना है, और उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। आपने उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो जीपीज़ के लिए एक डायलेमा होता है कि पेशेंट जो है वो बार बार ये कहती है कि मेरा वज़न कम नहीं होता, मैं जो मर्जी कर लूँ मेरा वेट कम नहीं होता। तो डोंट मेक इट अ टैबू कि हम उसको कहते हैं नहीं वज़न कम करो, वज़न तुम खाती होगी, ये वो इस तरीके से। लेकिन यह है कि इट इज़ अ रेजिस्टेंट डिजीज़, तो इसलिए उसको जो है वो डायलेमा ना बनाएं और उसको ऑप्शंस दें कि वो किस तरीके से एक हेल्दी BMI अचीव कर सकती है। ठीक है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। उसके अलावा प्री कंसेप्शन केयर है, आप रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट्रोजोल, अब ये जो इंटरनेशनल एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन है 2023 में, अब सारी इसमें एशरे है, इसमें ASRM है, इसमें अमेरिकन जो रिप्रोडक्टिव सोसाइटी है, दे ऑल हैव कंसेंसस कि लेट्रोजोल इज़ द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओव्यूलेशन इंडक्शन। मेटफॉर्मिन दे सकते हैं साथ अगर पेशेंट को मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, और पेशेंट को अगर आपने इंडक्शन पर डालना है तो यू हैव टू रेफर द पेशेंट टू अ स्पेशल फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आजकल ओज़ेम्पिक जो है वो हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, उसकी जो है वो इन वेट रिडक्शन उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज में भी लेटेस्ट रिसर्चेज जो हैं वो दे हैव प्रूवन के दे GLP-1 या ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1A है, दे हैव अ रोल इन रिड्यूसिंग द ओबेसिटी, रिड्यूसिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड अल्टीमेटली अचीविंग ओव्यूलेशन इंडक्शन। लेकिन जब तक आप उसको पेशेंट को ये मेडिसिन दे रहे हैं, इंजेक्शंस दे रहे हैं, ओरल दे रहे हैं, तो आपने एडवाइस करना है कि पेशेंट मस्ट नॉट कंसीव। एंडोमेट्रियोसिस है, पेशेंट पेन के साथ आती है, क्रॉनिक पेल्विक पेन के साथ, डिस्मिनोरिया के साथ, डिस्पिरूनिया के साथ, हैवी ब्लीडिंग के साथ और इनफर्टिलिटी के साथ। एंडोमेट्रियोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो एग्जामिनेशन के बाद अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड अवेलेबल हो तो बहुत अच्छी बात है, और उसके साथ अगर MRI हो तो वो उसकी बहुत अच्छी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी है ईदर इन डिटेक्टिंग और रूलिंग आउट एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस को आप अगर MRI करा के रेफ़र करें तो बहुत ही अच्छा होगा, टाइम स्पेयर हो जाएगा स्पेशलिस्ट का। और पेशेंट को आप हार्मोनल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, सर्जरी ऑफर कर सकते हैं सब स्पेशलिटी क्लिनिक में। जेनिटल ट्रैक एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कोई भी एबनॉर्मेलिटी है, लेकिन जो कॉमनली हम देखते हैं वो जो है वो या तो पॉलिप है, सेप्टम है, या सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड है, दे विल अल्टीमेटली नीड सर्जरी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो जेनिटल ट्रैक एबनॉर्मेलिटीज़ का है वो हमारा आइट्रोजेनिक रोल है। undue cesarean section, undue evacuation and curettage, undue surgeries for ectopic pregnancies, early ectopic pregnancies which could be managed medically, उन सब को कोशिश करें कि आप अगर हम avoid कर सकें गायनाकोलॉजिकल और ऑब्स्ट्रेटिक सर्जरीज तो दैट वुड बी वेरी गुड, क्योंकि सिजेरियन सेक्शन है वो नीश बना देता है, इस्थिमोसील बना देता है, उस जगह पे जो है फ्लूइड इकट्ठा होता है, इन्फेक्शन की सोर्स बनती है, ट्यूबल फैक्टर एंड यूट्राइन फैक्टर एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, इनफर्टिलिटी कॉज होती है सेकेंडरी स्पेशली। तो इसलिए जो है वो अनड्यू सर्जरी जो है वो वी शुड ट्राई टू टेक स्टेप्स टू रिड्यूस अनड्यू ऑब्स्टेट्रिकल और गायनाकोलॉजिकल सर्जरीज। इनकी जो है सर्जिकल मैनेजमेंट होती है और ART हो सकती है। ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, ऑब्वियसली सिलेक्टिव केसेस में हम सर्जरी कर सकते हैं, HSG पे डायग्नोज होता है, लेप्रोस्कोपी पे डायग्नोज होता है, और ज़्यादातर जो है दे एंड अप इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। सो व्हाट आर द ऑब्वियसली जो इनफर्टिलिटी है इसको कहते हैं रोलर कोस्टर राइड है। रोलर कोस्टर राइड होती है, पेशेंट साइकोलॉजिकली इमोशनली ड्रेन हो जाता है, ट्रीटमेंट बहुत लॉन्ग टर्म है, आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते यूजुअली कि कितना टाइम लेगा, एक इनडेफिनेटिव पीरियड के लिए पेशेंट जो है वो एक्सपोज टू स्ट्रेस है, तो उसके लिए साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा। और ये हो सकता है कि अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो तो आप पेशेंट को जो है वो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास भेजें।
काउंसलिंग एंड सपोर्ट जो है वो ज़ाहिर है ये एक टेस्ट है दोनों के रिलेशनशिप का, उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपकी काउंसलिंग। पेशेंट को एग्जैक्टली अपनी प्रोग्नोसिस डायग्नोसिस पता होनी चाहिए, प्रोग्नोसिस पता होनी चाहिए डिजीज़ की, और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। आगे जल्दी रेफ़र कर दें अगर एज यंग बहुत ज़्यादा एडवांस्ड एज है, ताकि उसका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और प्रोफेशनल काउंसलिंग में भी नहीं दें। थैंक यू।